مفتی صاحب براہ مہربانی اس سوال کا جواب وضاحت سے دیں کہ قیامت کا میزان کہاں لگے گا، کیسے لگے گا قرآن و سنت کی روشنی میں؟ دیکھو برزخ کی جو باتیں ہیں نا یا قیامت کی جو باتیں ہیں، چونکہ وہ یہ دنیا نہیں ہوگی تو اس کی پوری کیفیت ہمیں نہ بتائی ہے نہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے اس کی پوری کیفیت کو جاننے کی کوشش کرنا ایک فضول حرکت ہے۔ اب مثال کے طور پر جہنم کے اوپر جو پل ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ وہ پل کیا ہے؟ وہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلے ہو۔ اللہ اسی کو ایک صورت اور شکل دے کے پل پہ قائم کر دیں گے، پل بنا دیں گے۔ تو کیا اس کی مثال دی جا سکتی ہے دنیا میں؟ ظاہر ہے نہیں دی جا سکتی۔ تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نہیں بتایا گیا ہم اس کی تفتیش میں نہیں جاتے۔ جو ہمارے کام کی چیز تھی وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشرکین نے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ روح تو ہماری باڈی میں روح ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، اللہ کا ایک حکم ہے۔ اب یہ پورا ایکسپلین تھوڑی کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے ہمیں پورا ایکسپلین تو کیا نہیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، تو نے تو کہہ دیا میرا حکم ہے بس۔ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، روح کا جواب پورا نہیں دیا، اس کا جواب دیا کہ میں نے پورا جواب کیوں نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ اس اشکال کا اللہ نے جواب دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے، علم ہے تمہارے پاس لیکن اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ تو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے دماغ کی، اس کیپیسٹی کے حساب سے اتنا جواب کافی ہے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے، جب وہ باڈی میں ہوتا ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں، باڈی سے نکلتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اب تک وہ بھی روح کو یعنی زندگی اور حیات کو ایکسپلین نہیں کر سکی ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ میڈیکل سائنس کا علم جو ہمارے پاس ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہے، وہ بھی بہت تھوڑا ہے، اتنا تھوڑا ہے۔ یہ جو جینز کا علم ہے نا، جین جس میں ڈاکٹر گھسے ہوئے اندر، ایک جینیٹک سائنس کے ڈاکٹر نے مجھے بتایا آسٹریلیا میں کہ اس میں 2% کا تو ہمیں پتا چلا ہے، وہ بھی 100% نہیں، 98% کا تو کخ بھی پتا نہیں ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ جو ہم جب آدمی کے سیل کو توڑتے چلے جاتے ہیں نا، تو ہماری جو بنیادی اکائی ہے باڈی کی وہ سیل کہلاتی ہے نا، جس اینٹوں سے ہماری باڈی بنتی ہے۔ اس سیل میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے، مرکزہ ہوتا ہے، جیسے انڈے میں نا، انڈا بھی سب سے بڑا سیل ہے، ایک سائٹوپلازم ہے، اس کے اندر زردی ہے جو نیوکلیس ہے۔ تو ایسے ہی ہماری باڈی کو بھی آپ توڑتے چلے جائیں گے تو ایک اکائی آئے گی، ایک یونٹ آئے گی جس کو سیل کہا جاتا ہے۔ پھر اس کو بھی آپ توڑیں گے تو نیوکلیس کے اندر بہت زیادہ فنٹر نہ بنے۔ تو ابھی تک زندگی ہی کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکا یہ زندگی کیا چیز ہوتی۔ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں، روبوٹ بھی دیکھتا ہے، محسوس نہیں کرتا ہے۔ وہ تو محسوس کرنے کا نام کیا ہے؟ حیات۔ یہ حیات کھوپڑی سے اوپر کی چیز ہے بھائی، یہ اسی کو اللہ نے کہا میرا حکم ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے آدم کا پتلا بنایا، اللہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے اپنی روح پھونک دی، زندہ ہو گئے۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، جب انسان مرتا ہے تو پوری باڈی تو ویسے ہی ہوتی ہے، سب کچھ وہی پارٹس بنے ہوئے، تو ہل کیوں نہیں رہی ہے؟ آپ کہہ سکتے چونکہ دل نہیں حرکت کر رہا تو دل حرکت کرا دو اس کا۔ ماں کے پیٹ میں کیسے دل حرکت کرنا شروع کرتا ہے بھائی فرسٹ ٹائم؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، ہوائی باتیں نہیں کر رہا، کہ جب پہلی دفعہ ماں کے پیٹ میں بچے کا دل دھڑکتا ہے تو کیوں دھڑکتا ہے؟ پہلی دفعہ کس نے دھڑکایا؟ میڈیکل سائنس اس بات کو بیان کرنے سے اب تک عاجز ہے، سمجھتے ہو؟ دیکھو اب کیوں دھڑک رہا ہے اب تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں، ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے، الیکٹریسٹی سے کام ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے یہ کرنٹ کے الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ اتنا دھڑکتا نہیں جتنا بل آتا۔ اور گیس پہ چل رہے ہوتے ابھی ہم سب، اب گیس بھی گئی تو سلنڈر لگائے ہوئے ہوتے دل دھڑکانے کے لیے ہم لوگوں نے۔ تو کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی کہ الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں اللہ نے وہ چیزیں نہیں دی۔ پنکھا کے الیکٹرک کے ہاتھ میں، لیکن جو ہوائیں چلتی ہیں وہ کے الیکٹرک کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہوتا ہب سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں کہ میری ہوائیں بھی ہیں، ٹھیک، باہر نکل جا سین میں منجی ڈال کے لیٹ جا۔ منجی کا فائدہ یہ ہوگا نیچے سے بھی ہوا لگے گی۔ مولٹی فوم والوں نے جو گدے بنائے اوپر سے لگے گی، نیچے سے نہیں لگے گی۔ تو مولٹی فوم کے گدے پہ جب آپ لیٹیں گے تو کے الیکٹرک والوں کے محتاج ہوں گے، وہ پنکھا چلائیں گے تو ہوا لگے گی، ادروائز نہیں۔ لیکن اگر آپ منجی پہ لیٹیں، چارپائیوں پہ لیٹیں، تو بھائی اس میں سے آٹومیٹیکلی جب ہوا چلے گی تو چاروں طرف سے آپ کو ہوا لگے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں کا محتاج
ना बनाओ, कुदरती माहौल में रहने की आदत डालो। समझते हो कि नहीं समझते हो? मैं सऊदी अरब में 2 महीने रहा, एयर कंडीशन ही में रहते हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया वहां पे, मेरा दिमाग फटने लगा। मैं आया घर में 2 महीने बाद, जब मैं आया ना, मैंने पंखा चला के लेटा यार, खिड़कियां खोल दी कमरों की। खुदा की कसम, जो नेचुरल में मजा है ना, वो आर्टिफिशियल में नहीं है। पता नहीं लोग 24 घंटे एसी में पड़ते क्यों नहीं है, अजीब जहनी कोफ्त होना शुरू हो जाती है। आदी हो गए हैं, हमने अपने आप को आदी किया ही नहीं एयर कंडीशन का। तो मैं क्या करता हूं, मैं तो आता हूं, मैं आया, मैंने घर के चारों खिड़कियां मिड़कियां खोली, आराम से घर ऐसा बनाया कि खिड़कियां खोल के बेपर्दगी ना हो। आजकल घर भी इस तरह के होते हैं कि वो कहीं ना खिड़की खोल सकता है आदमी, ना कहीं सहन में लेट सकता है। तो उससे ये जो नेचुरल लाइफ है ना, ये सुकून देती है इंसान को। पंखे की भी अपना मजा है भाई, अगरचे पंखा नेचुरल नहीं है, लेकिन उसको अड़ंग 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 की आवाज का अपना मजा है। अभी तुम्हें अगरचे तुम लोग दीन सुनने के आए, तो थोड़ी सी बातें भी सुन लो ना। मैं जब जापान गया ना अभी, तो मुझे जो कमरा दिया इरशाद भाई ने, वो उसमें सर्दियां थी तो पंखा तो चला नहीं सकते थे। अब हीटर चलाते तो मुझे हीटर से तकलीफ होती है। ये जो हीटर होता है ना, एयर कंडीशन में जो हीटर भी चलता है ना, ये अजाब है। ये गैस का हीटर भी एक अजाब है। लकड़ियों की आग भी हमने तापी है, उसमें वो टेंशन नहीं होती जो गैस के हीटर में होती है। पता है आपको, लकड़ियों की आग जला दो ना कमरे में, उससे जो हीट मिलती है, उससे आदमी स्ट्रेस डिप्रेशन में नहीं जाता। ये जो गैस का हीटर है ना, ये अजीब सी चीज है ये। तो मैंने कहा भाई हीटर नहीं चलाओ, ना एसी वाला हीटर चलाओ और ना गैस वाला। अब सर्दी बहुत है तो डबल रजाई ले लेंगे हम, कोई बात नहीं। अब जब डबल रजाई ले रहे हैं तो अब पंखे भी नहीं चल रहे, हीटर भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं, तो आवाज, अब कोई जरा सा ठक हो आवाज आती है। साथ में उनके बच्चे तो बातचीत करेंगे, शोर शराबा करेंगे, नींद नहीं आ रही। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे तो पंखा चलाना है। पंखा था ही नहीं, सॉरी, जापान में सर्द इलाकों में थोड़ी पंखे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार यूट्यूब हर बीमारी का इलाज है, मुझे चाहिए पंखे की कड़ंग कड़ंग आवाज। हम तो आदी हैं उसके कड़ंग कड़ंग आवाज से, अड़ंग अड़ंग ऐसे। पंखा जितना बेकार होगा ना, उतना अच्छी लोरी सुनाता है। पंखा जितना खराब होगा ना, कड़ंग गड़ंग गड़ंग गड़ंग, एक फ्रीक्वेंसी के साथ वो गड़ंग गड़ंग करता है, उसका अपना मजा है यार। बचपन याद आता है, बचपन याद आता है। पहले बड़े आड़े तिरछे पंखे हुआ करते थे ना, गड़ंग 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 घूम रहे होते थे, लगता था ये हम पे गिर जाएगा। और एक दफा मैंने पंखा गिरता हुआ भी देखा है। पंखा ऐसे खड़ा हुआ था, गड़ंग 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 घूमने का भी गिरेगा, वो गिर गया थोड़ी देर में। खैर बच गए हम। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे लिखा फैन वॉइस फॉर स्लीपिंग, तो यूट्यूब पे आ गई पंखे की आवाज। मैंने लगाया जोर से, गहरी नींद। अब शोर शराबा और मुझे थोड़ी देर ये तसव्वुर होता है कि ये यूट्यूब पे ओरिजिनल नहीं है, लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद ना आपको लगेगा वाकई पंखा चल रहा है। तो अब वो शोर भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, मेरी सेहत, मैं समझ रहा हूं पंखा चल रहा है। ये यूट्यूब पे डाला इसलिए है। और नीचे लोगों के कमेंट्स के, जब से हमने ये पंखा चलाया ना, यूट्यूब गोरों के कमेंट्स थे कि बजे की नींद आ रही। अच्छा, उसमें फिर ऐसी वीडियोस भी, बारिश हो रही है, बास दफा बारिश में भी बड़ा सुकून मिलता है। बारिश हो रही हो ना, बिजली कड़क रही है, बड़ी गहरी नींद आती है। ये नेचुरल है, एक नेचुरल माहौल पैदा हो जाता है। तो मैं तो नेचर से लव करने वाला आदमी हूं, मुझे नेचर से मोहब्बत है। तभी तो शादियां की हुई हैं, मुर्गियां पाली हुई हैं, ये सब नेचर है। तुम लोग को लैंड क्रूजर और ये नेचर नहीं है, रीवो, ये जरूरत है। नेचर ये है कि बकरी का दूध, मुर्गियां, बेगम, बच्चे, पंखे, गड़ंग गड़ंग। गड़ंग भी नेचर नहीं है, लेकिन पुराना जमाना तो याद आता है ना, सही है ना। एयर कंडीशन नेचर नहीं है, कंबल नेचर नहीं है, रजाई सदियों से इंसान, मैं कंबल में नहीं सोता कभी। आप देख ले, मैं जहां भी जाता हूं बोलता हूं भाई रजाई चाहिए। रजाई का एक वेट होता है, सर्दियों में जब रजाई लिहाफ ऊपर लेते हो उसका अपना मजा है, कंबल में वो मजा नहीं है। दूसरा, कंबल में गड़बड़ क्या होती है, वो करंट मारता है, बालों से चिपक रहा है, बाल चिपक रहे हैं, अब एक टेंशन है। फिर उसके अंदर गर्दो गुबार अटकती है, आपको पता नहीं होता, उसकी सफाई आसान नहीं होती कंबल की, तो कंबल हो जाता है आपको। तो इसलिए मैंने अपने लिए घर में रजाई रखी हुई है, ज्यादा सर्दी होगी डबल रजाई। कहीं भी जाता हूं, मेहमानों से बोलता हूं, मेजबान से बोलता हूं मुझे रजाई लगे दो, कंबल नहीं। तो रजाई में वेट ना, शदीद सर्दी में रजाई का जो वजन होता है ना आपके ऊपर आता है, बड़ा मजा है उसमें भाई। तो वो क्या किया हमने, यूट्यूब पे पंखा लगा लिया, कड़ंग कड़ंग आवाज आ रही है, बड़े मजे से मैं पंखा लगा के सो गया। अब जब वो सुबह मुझे उठाने के लिए आए तो कह रहे हैं ये मोबाइल में क्या शोर हो रहा है मुफ्ती साहब, क्या कि पूरी रात आप मोबाइल देखते रहे हो, सोए नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं पंखा चला के सोया हूं, मैं पंखा चला के सोया। फिर क्या हुआ कि अब वो बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं कहता हूं करते रहो शोर, मुझे परवाह नहीं है, मैं पंखा चला रहा हूं बहुत तेज। जब ज्यादा शोर होता था तो पंखे की आवाज क्या कर देता था,
बढ़ा देते। ये बड़ी मजे की चीज है, यूट्यूब पे सर्च करें, बड़ा मजा आता है इससे। खैर मेरे भाई, और आसान इससे अच्छा तरीका किसी का बयान लगा लो। बाज़ दफा मैं बयान लगा लेता हूं, अपना नहीं लगाता, क्योंकि अपना लगाओ ना तो फिर वो और नींद गायब हो जाती है, उसमें हंसी की बातें आती हैं, तो मैं कभी खुद अपने ही लतीफे पे हंसना शुरू कर देता हूं। तो मैं फिर किसी बड़े बुजुर्ग का बयान लगा देता हूं। उसका फायदा ये होता है, नॉलेज में भी इजाफा होता है, मोटिवेशन भी मिलती है, और बाज़ दफा नींद भी आ जाती है, बयान सुनते सुनते सो जाता है आदमी। ये जब करता हूं जब दिमाग चल रहा हो। आजकल सियासी हालात ने ना दिमाग का दही बना दिया है, किसी को भी टाइम पे नींद आ जाए इसका मतलब वो पागल है। उधर से फौज के खिलाफ बयान, उधर से पीटीआई के खिलाफ बयान, उधर से जेयूआई के खिलाफ बयान, उधर से मुस्लिम लीग के खिलाफ बयान, उधर से मुस्लिम लीग का जरदारी के खिलाफ बयान। वीडियोस भी देख रहे हैं, सहाफियों को भी सुन रहे हैं, उधर की सुनो उधर, इतना दिमाग की दही हो जाता है। फिर मैं बंद कर देता हूं, दफा करो यार, ऐसी की तैसी, हम अगले की टेंशन अपने ऊपर क्यों लें। तो इसके लिए फिर रात को पंखा चलाना, बोलो, फिर पंखा चला के सोए। जब भी ऐसे टेंशन हो ना, बयान लगा दो या पंखा चलाओ। तो खैर कहां से कहां बात चली गई। तो मैं जो सवाल पूछा था कि बहुत सारी चीजें हमारी मेंटल लेवल से ऊपर की हैं, तो हमें आखिरत की जो बातें बताई गई हैं, तराजू भी लगेगा, उस तराजू की कैफियत क्या होगी। ऐसे कोई फरिश्ता यूं करके बट्टे लेके बैठा हुआ होगा तराजू के, या कोई डिजिटल तराजू होगा, क्या होगा ये हमें अब बताया तो गया। तराजू के एक पलड़े में गुनाह रखे जाएंगे, एक पलड़े में नेकियां रखी जाएंगी। बस हमारी फहम के मुताबिक बात की गई है। देखो तराजू तो ये भी है, जो आजकल थर्मामीटर भी तो एक तराजू है ना, जो टेम्परेचर को नापता है। अब 1400 साल पहले किसी को बताया जाए कि एक तराजू इजाद होगा 1400 साल के बाद, जो बुखार को नापेगा कि कितना है, तो किसी की समझ में आती है ये बात कि बुखार के एक पलड़े में लाके रखेंगे? नहीं भाई, एक जो पारा है ना, पारा, वो जबान के नीचे रखा जाएगा, वो बता देगा। तो आमाल कैसे तोले जाएंगे इसकी हकीकत अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ने हमें जो जितना बता दिया हम उस पर ईमान रखते हैं। पूरी कैफियत ना हमें मालूम है, ना हमें इन चीजों में पढ़ने की जरूरत। जो चीज हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जिसका ताल्लुक था उतना अल्लाह ने हमें बता दिया, और आगे हम जाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ने कहा वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें अल्लाह ने नॉलेज बहुत कम दी है। नॉलेज का मतलब कैपेसिटी, तुम्हारी नॉलेज की बहुत कम है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। यही अल्लाह के बारे में भी, अल्लाह अर्श पर है, इल्म और कुदरत के लिहाज से हर जगह है। कैसे है भाई हमें नहीं पता, इस पे हम जा नहीं सकते आगे। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, तलाक के बाद इद्दत के दौरान औरत को निकाह का पैगाम भेजना जायज है या नहीं? हराम है बिल्कुल। नीज तलाक के बाद औरत की कितने महीने इद्दत होती है? 3 मेंसेस। औरत को 3 मेंसेस आके खत्म हो जाएंगे ना तो उसकी इद्दत पूरी हो जाती है। और अगर कोई ऐसी औरत है जिसको मेंसेस आना बंद हो गए हैं, उम्र ज्यादा हो गई है, तो फिर 3 महीने। और अगर वो प्रेगनेंसी में थी, प्रेग्नेंट थी, तो बच्चे की विलादत। यहां मैं एक और मसला बयान करता चलो। आजकल एथियस लोगों ने एक बड़ा मसला उठाया हुआ है कि इस्लाम नाबालिग बच्ची की शादी की भी इजाजत देता है, और इसको बड़ा तमाशा बना के पेश कर रहे हैं। हमारे कुछ स्कॉलर्स उनका जवाब दे रहे हैं, मगर वो जवाब गलत जवाब दे रहे हैं। अगरचे उनकी नीयत अच्छी है उन स्कॉलर्स की, इस्लाम का दिफा कर रहे हैं, लेकिन वो दिफा में इस्लाम के हुक्म को भी चेंज कर रहे हैं वो। और एक मशहूर जेहलम के साहब है, वो बेचारों को कुरान का पता वता है नहीं, उन्होंने तर्जमा ही गलत कर दिया कुरान की आयत का। तो सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने 28वें पारे में नाबालिग बच्ची की शादी का बाकायदा जिक्र किया है। वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़न। अल्लाह फरमाते हैं जो औरतें जिनको हैज आना बंद हो गया हो, इर्तबतुम, अगर तुम शक में हो, वो जेहलम वाली सरकार ने इर्तबतुम ही को गलत मतलब कर दिया उसका। अगर तुम शक में हो कि इनकी इद्दत कैसे पूरी होगी, तो अल्लाह कहते हैं 3 महीने हैं। वल्लाई लम यहिज़न। इसी तरह जिन औरतों को अभी तक हैज आया ही नहीं है, उनकी इद्दत भी कितनी है? 3 महीने। तो जिनको हैज आना शुरू ही नहीं होता वो नाबालिग ही होती हैं, और कुछ और नहीं होती। तो ये कोई फिक़ह हनफी का नहीं है, ये चारों इमामों की यही राय है इस बारे में। चारों इमामों का इत्तिफाक है कि नाबालिग बच्ची की अगर शादी हुई तो हो जाएगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो आप मुल्हिदीन को जवाब देने का वो तरीका इख्तियार ना करें जिससे इस्लाम ही की लिमिट क्रॉस कर दें आप। इसकी बिल्कुल ऐसे मिसाल है, यानी जिन लोगों ने मुल्हिदीन को जवाब दे रहे हैं ना, कह रहे हैं नहीं ये इससे नाबालिग बच्ची मुराद नहीं है, इससे तो वो बालिग है जिसको अभी हैज आना शुरू ही नहीं हुआ हो। ऐसा नहीं है, इससे वो बच्ची मुराद है जिसको अभी हैज आना शुरू नहीं हुआ। बाकी से इतराज का जवाब क्या है वो मैं अभी देता हूं। बहुत आसान जवाब है इसका, इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके जवाब में। वो जवाब मैं अभी देता हूं आपको। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब गैर मुस्लिमों ने इस्लाम पे एतराज किया ना, 4 बीवियां इस्लाम में इजाजत है, तो बाज स्कॉलर ने, गामदी साहब ने क्या किया,
एक्चुअली करके उस 4 बीवियों का ही बेड़ा गर्क कर दिया। एक्चुअली वो तो उस वक्त इजाजत दी गई थी जब मर्द बहुत जंगों में थोड़े रह जाते थे, औरतें बहुत होती थी, खास स्पेसिफिक सूरतों में, अदरवाइज ये कोई काबिल तारीफ नहीं है। हालांकि ये जवाब गलत है। आप गैर मुस्लिम को मुतमईन करने के लिए, अगरचे आपकी नीयत अच्छी होगी कि भाई इस्लाम पर एतराज उठ रहा है तो उसका जवाब दे दिया जाए, नीयत पे हम शुबा नहीं करते, लेकिन ये जवाब गलत है। 4 शादियां, पूरी उम्मत का इजमा है कि जंगों में मर्द कम हो या ज्यादा हो, इससे कोई फर्क बोलो नहीं पड़ता, इजाजत है हमेशा से। आज इजमा उम्मत है ये। तो इसमें गैर मुस्लिमों को आप मुतमईन करने के लिए ऐसा जवाब देना शुरू कर दें कि इस्लाम ही को चेंज कर दें, ये तरीका ठीक नहीं है। वो कभी भी मुतमईन नहीं होंगे। अगर आपने हर चीज को अपनी अकल से ही फैसला करना है तो फिर यूनाइटेड नेशन को आप अपना खुदा बनाएं, आप उससे पूछें। वहां बड़े बड़े माहिरीन बैठे होते हैं, अकल से फैसला कर रहे होते हैं क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। जब वही की तालीमात सामने आती हैं तो कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो आपकी अकल के मुताबिक होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपकी अकल को समझ में नहीं आ रही होंगी। वहां आपको अल्लाह के सामने हथियार डालने पड़ेंगे। अगर सब कुछ अकल से ही पूछना है तो अल्लाह रसूल की आपको फिर जरूरत क्या है? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? फिर तो होमोसेक्सुअलिटी को भी अकल से आप कैसे गलत साबित करो?